visit to the giant wild goose pagoda in Xi'an. All right, I believe we've not been able to establish contact with Ritu, our correspondent there. We'll try getting back to her again. At present, we can see Prime Minister at the big wild goose pagoda in Xi'an, and he's accompanied by the Chinese president. Surprising to know, this important spiritual structure had eventually collapsed 5 decades after it was constructed because of an earthquake, and it was again rebuilt to its current height of 7 stories. There is also a small wild goose pagoda in Xi'an as well, but it also suffered a lot of damage in the 1556 earthquake. That was what struck both the pagodas, and the small wild goose pagoda, however, has not been rebuilt. And the Prime Minister at present is the big wild goose pagoda in Xi'an. We see Prime Minister having an interaction with the monks there, waving to the people there who've gathered to catch a glimpse of the Indian Prime Minister. Earlier also we saw a lot of enthusiasm and a warm reception of the Indian Prime Minister in the Chinese town when he landed in the morning. Our correspondent Ritu is now joining us. Ritu, we see a warm welcome of the Prime Minister there, and also we see him interacting with the monks. The Chinese president is accompanying the Indian Prime Minister, and here they shake hands. Very quickly, give us more on this visit to the big wild goose pagoda in Xi'an. प्रीति, वाइल्ड गूस पगोड़ा का इतिहास एक तो जितना पुराना है उतने ही पुराने संबंध भारत और चीन के भी हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि यही वो संत हैं हुएनसांग जो 7वीं शताब्दी में चीन से भारत गए थे और 16 साल भारत में रहे थे। बौद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया, प्रचार करा, प्रसार करा, और फिर जब 16 साल बाद वो वापस आए तो अपने साथ तमाम उन पांडुलिपियों को लेके आए जिनका उन्होंने यहाँ पर फिर अनुवाद किया संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक साझा सूत्र है भारत और चीन के बीच में, और ये सांस्कृतिक इतिहास के रूप में भी दोनों देशों को एक लंबी समय से जोड़ के रखा हुआ है। और यही कारण है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री इस वाइल्ड गूस पगोड़ा में आए हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है। और इस समय वो वाइल्ड गूस पगोड़ा के प्रांगण में इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक तरह से एक चक्कर लगा रहे हैं, उसको चारों तरफ से देख रहे हैं और उनके साथ बातचीत हो रही है। इससे पहले जो दोनों ही शिष्टमंडलों के बीच में बातचीत हुई वो भी काफी अहम है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने उसकी एक तरह से ब्रीफिंग की है, शॉर्ट ब्रीफिंग जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि किन किन मुद्दों पर लगभग 90 मिनट दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हुई, और शिष्टमंडल में कई मुद्दे उठे, जिसमें टेररिज्म का मुद्दा उठा, जिसमें कोऑपरेशन का मुद्दा उठा, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है। यही नहीं, यूएन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स पे भी बातचीत हुई है, एनएसजी की सदस्यता को लेकर भारत की उस पर भी बातचीत हुई है। तो एक लंबी बातचीत हुई, और इस पूरे दौरे को इस तरह से देखा जा रहा है कि एक लंबे समय से जिस तरह से भारत और चीन के संबंध चले आए हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बहुत सारे मुद्दे भी रहे हैं, साथ ही साथ सहयोग के भी मुद्दे रहे हैं, तो किस तरह से सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को आगे बढ़ा के इन संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए और एक नई इबारत लिखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे से कर रहे हैं। Right, Ritu, you've told us that this pagoda has preserved manuscripts from the 7th century brought by the Chinese monk Xuanzang. But then we've seen the Prime Minister visit the Terracotta Warriors Museum in the morning. He also went to the Dashang Temple, and at present he is at the big wild goose pagoda in Xi'an. So it's basically the aspect of culture, the element of culture, which is important during his stay in Xi'an, isn't it? Because tomorrow when he'll fly to Beijing, he'll have formal talks with the Chinese Premier tomorrow, isn't it, Ritu? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, इस पूरे दौरे को 3 हिस्सों में आप बांट सकती हैं कि पहला हिस्सा शियान में था, जहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की बात की गई है। दूसरा बीजिंग में है, जहाँ पे राजनयिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत होगी, और फिर तीसरा शंघाई पहुंचेंगे, जहाँ पर व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों के साथ ही एक कम्युनिटी, एक रिसेप्शन भी है। वहाँ पर करीब 10 से 15 हजार की संख्या में भारतीयों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कुल मिला के इस अपने 3 दौरे से हर पहलू को छूने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति कि पिछले
8 महीने में ये दोनों ही नेशंस के जो अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये दूसरी मुलाकात है। और 8 महीने पहले जिस तरह से समझौतों पे हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद कोई नई चीज निकल के आनी इस यात्रा से बेहद जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की नजरें भी लगी हुई हैं और सिर्फ इन्हीं दोनों देशों की नहीं बल्कि दुनिया की नजरें इस मुलाकात पे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी कही जाती है, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि बुद्ध के बिना एशिया की सदी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मोदी ने कहा कि सामाजिक बुराइयों और क्षेत्र विस्तार की प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए त्याग, मर्यादा, करुणा, प्रेम, सामाजिक सुधार के उस रास्ते को अपनाना ही होगा जिसे भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले दिखाया था। जिसका कुल मिला के मतलब ये होता है कि अगर विश्व में शांति है तो विकास निश्चित रूप से होगा, और शांति के लिए प्रयास करने की जरूरत है। और इसी शांति की पहल को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइल्ड गूस पगोड़ा भी आए हैं। यहाँ पे अब से थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक बौद्ध ट्री का सैपलिंग का भी भेंट करेंगे। तो ये सारी जो कवायद है पूरी, ये कही जा सकती है कि न सिर्फ दो देशों के संबंधों को बेहतर करने, लेकिन विश्व को भी एक संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। Right, Ritu, when the Prime Minister met the Chinese leadership during the BRICS summit in Brazil, he talked of how China and India have indeed are sharing one soul. They are joined by one soul, and also the people-to-people contact between the two countries is evident. The way we saw the Prime Minister, Indian Prime Minister, get overwhelming and arousing reception at the airport when he landed today. What is your take on the expectations and on the general mood of the people there? You are in Xi'an and you're accompanying the Prime Minister there, and also in the visuals we see him on and off waving to the crowds there, waving to the people who gathered there to catch a glimpse of him. Give us more on this. देखिए प्रीति, जिस तरह से अपने प्रोटोकॉल को अलग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत अहमदाबाद में किया और साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे उनके साथ चलते हुए जो बातचीत हुई, और जो वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जो एक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है अपने तमाम देशों के संबंधों के साथ, वो सिर्फ शी जिनपिंग नहीं, वो चाहे राष्ट्रपति ओबामा की बात करें या फिर हम फ्रांस में भी बात करें, जिस तरह से नाव पे चर्चा हुई थी, चाय पे चर्चा हुई है, ये सारे वो पहलू हैं जो कठोर जो मुद्दे होते हैं जब दो देशों के बीच में, और उनको सुलझाने और उन पर बातचीत का दौर लंबा चलता है, तो उसके साथ साथ सहयोग को किस तरह से बढ़ाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पे जोर देते रहे हैं कि वो मसले अपनी जगह है जिनको लेकर अगर विवाद भी है तो उस पर बातचीत का दौर जारी रहे, बातचीत के जरिए उनको सुलझाया जाए, लेकिन साथ ही साथ विकास के लिए एक एशिया और विश्व में शांति की जरूरत है, जिसके लिए तमाम देशों से बातचीत करने की जरूरत है, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे ये सारे पहलू हैं जिन पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। और उसी के तहत, और आज देखा भी गया जिस तरह से वो शान टेम्पल से जब बाहर निकले तो हजारों की भीड़ थी चीन की सड़कों पर भी, तब वो गाड़ी से उतरे, वहां पे भी उन्होंने एक बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उतर के वहां लोगों से हाथ मिलाया और मिले, जो कि ये उनका अपना अंदाज है, अनोखा अंदाज है लोगों से संपर्क स्थापित करने का। और उनका मानना है कि जितना आप पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और भावनाओं का मिलान या फिर लोगों से जितना आप जुड़ते हैं, उतनी ही ये जो दूरियां एक लंबे समय से चली आ रही हैं वो खत्म होती है, संबंधों को मजबूती प्रदान करती हैं। Right, and that is this soft diplomacy which you're talking of, Ritu, is evident the way the Chinese president is reading out to the Indian Prime Minister in the visuals we're showing to our viewers live from the giant wild goose pagoda in Xi'an. Also, from here on, you're talking of the soft diplomacy, which is also evident in the body language of the two leaders there, and also how they've moved away from protocol in their respective turns to welcome both of them in their respective countries. But then when we talk of the hard, important issues which you're talking of, Ritu, from here on, when the Prime Minister goes to Beijing tomorrow, what all is expected on the cards? Because we've told our viewers that as many as 20 agreements could be signed. देखिए, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि इस पूरी यात्रा से कुछ ठोस बाहर निकल के आने की बातचीत हो रही है, खासकर जब भारत और चीन की बात होती है तो हम उन मुद्दों को ज्यादा जिक्र करते हैं जो एक लंबे समय से लंबित मुद्दे चले आ रहे हैं। लेकिन ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि इन मुद्दों पर कोई बड़ी पहल नहीं जाए। लेकिन हाँ, ये शुरुआत है, लगातार बातचीत हो रही है और ये
ये जो शुरुआत, ये जो बातचीत हो रही है, उसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में इन मुद्दों को भी हल करने में दोनों ही देशों को मदद मिलेगी। एक बात और प्रीति, जिस तरह से प्रोटोकॉल को अलग करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वागत किया था राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, उसी कुछ अंदाज में आज हमने जिस तरह से हवाई अड्डे पे भी शिंचा के देखा जब प्रधानमंत्री लैंड किए थे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरह का था, ये आमतौर पर चीन की परंपरा में नहीं आता है कि जब कोई राष्ट्र अध्यक्ष आए या कोई बड़ा नेता किसी राष्ट्र का आए तो वो इस तरह का स्वागत करे। तो ये एक तरह से रेसिप्रोकेट करा था, जो स्वागत, जो एक तो गर्मजोशी जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में दिखाई दी थी, उसी का रेसिप्रोकेशन था जो उन्होंने आज हवाई अड्डे पे जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम था, और लोगों का लगातार हमने देखा सड़कों पर भी यहाँ पर चीन की जब टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जा रहा है, तब लोग अपने अपने फोन निकाल के उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जगह जगह। तो ये वैसे एक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री ने अपनी आधिकारिक घोषणा चीन यात्रा की वीबो के जरिए की थी, जो एक ब्लॉगिंग साइट है चीन में। करीब 11 मिलियन हिट्स उस समय उन्हें अपने उस संदेश में मिले थे, और उसके बाद भी लगातार वो संदेश करते हैं। आज भी उन्हीं संदेश के जरिए वो जुड़े रहे हैं यहाँ के युवाओं से सुबह से, तो इसलिए वो एक उत्साह दिखाई दे रहा है शियान के लोगों में, उनको उनका स्वागत करने का भी, उनसे मिलने का भी, उनको देखने का भी। Right, so many likes on the Prime Minister's post there at Weibo, but then Ritu, that is also evident of the curiosity, and perhaps not curiosity exactly, but the positivity between the two countries, which indeed would be closely monitored by the international world as well. China and India coming together, and we are seeing the soft diplomacy and the eagerness of both the countries to join hands together. What message does it give to the international world, and how strongly can the two powers emerge from this? देखिए, भारत बहुत बड़ा बाजार है विश्व भर के लिए। भारत में अपार संभावनाएं हैं विश्व के लिए, विश्व के तमाम देशों के लिए निवेश की बहुत सारी संभावना है। और जिस तरह से नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरह से कुछ कार्यक्रमों को रखा है भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, स्किल डेवलपमेंट हो, निवेश को लेकर, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दी गई है जो सन सिटी में है अहमदाबाद के। तो ये कुल मिला के सारी गतिविधियां जो पिछले एक साल की रही हैं मौजूदा सरकार की, उसने बहुत ज्यादा आकर्षित किया है विश्व के उन देशों को भी जो अब से कुछ समय तक एक दूरी सी रखते थे। व्यापार में असंतुलन एक बहुत बड़ी चिंता है भारत की चीन के साथ, उसको भी भारत अपने इस दौरे में चीन के साथ पटल पे रखेगा, उस पर बातचीत करेगा, उसमें भी चाहेगा कि उसमें कुछ सुधार हो। लेकिन चीन पिछले कुछ वक्त में देखा है, जिस तरह से अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें और भारत और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए, भारत के तमाम उन देशों से संबंधों को देखते हुए जो निवेश करने के लिए एक तरह से आज की तारीख में तैयार हैं, जो पिछले कुछ समय से भारत में निवेश करने पर कुछ सोचा करते थे, और निवेश करने के लिए शायद वो माकूल वातावरण भी नहीं था, उस वातावरण को तब्दील किया गया है। आज की तारीख में तमाम देश निवेश करना चाहते हैं। तो भारत, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि हम आंख दिखा के संबंध नहीं, आंख झुका के संबंध नहीं बनाएंगे, आंख में आंख मिला के मिलाएंगे। तो आज की तारीख में भारत का जो स्तर और उसकी जो पोजीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस समय विश्व के सामने रखी है, वो आंख में आंख मिला के संबंधों को बनाने की बात है। और वही सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत है आज की तारीख में इन तमाम बड़े देशों की भी, और ये दोनों ही महाशक्तियां हैं, इनकी जरूरत है कि भारत के साथ संबंध इतने मजबूत हों। ये जानते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर एक लंबे समय से कटुता भी रही है, लेकिन कटुता को किस तरह से मोल्ड करते हुए विकास के रास्ते में सहयोग को बढ़ाते हुए उन मसलों पर भी धीरे धीरे से काम किया जाए। Right, Ritu, you're talking of how the two countries can emerge as important powers here, but then you've talked of the different initiatives of the Prime Minister. Now, Make in India is one initiative which is indeed very close to his heart, and we've seen him time and again emphasize how Make in India could help in the country's progress, be it in the US or when he went to Germany. He emphasized on, rather emphasized and also invited these countries to come and help India in taking forward this Make in India initiative. Now, when we talk of the engagements of the Indian Prime Minister with China today and during his visit,
again, we are sure that Make in India would be discussed, would be brought up on this front, on this forum as well. Now, how would it be for the Prime Minister to convince China, who indeed is a leader in manufacturing itself, convince China to come forward and help India in this Make in India initiative? Ritu, am I audible to you? Please give us more on the engagements of the Indian Prime Minister in China. A while back, I asked you about the Make in India initiative, which has been started by the Prime Minister, and how it is indeed very close to his heart, the way he invited US, the way he invited Germany to help India in taking forward the Make in India initiative. This time around when he is in China, it's all right. I think we've lost contact with Ritu there. We'll try getting back to her again to get more on that. Meanwhile, Foreign Secretary S. Jaishankar briefed the media about the talks between the two leaders a while back. He said that there was an emphasis on strengthening trust between India and China. Apart from this, the issue of trade deficit and the boundary issue also came up in the summit-level talks. At present, we're showing you the visuals from Giant Wild Goose Pagoda in Xi'an. The Prime Minister is in Xi'an and he is accompanied by the Chinese President, Xi Jinping. And we had our correspondent Ritu talking of how this could be the cultural highlight of the Prime Minister's visit. The Prime Minister also visited the Terracotta Warriors Museum in the morning. He also paid his respects and he also prayed at the Dashang Temple. He interacted with the monks there. At present, he's at the Giant Wild Goose Pagoda and he also offered his prayers. We also had some good visuals wherein the Chinese president read out scripts to the Indian Prime Minister. And a while back, we also told you about the press briefing by S. Jaishankar. Challenges of reform also came up during the talks, during the press meet. He gave us the highlights of the summit-level talks between the Indian leadership, led by Prime Minister Narendra Modi, with the Chinese leadership, led by Chinese President. The talks lasted over an hour and took forward the groundwork done during President Xi's visit to India in September.